To discuss about सैनिक स्कूल एग्जाम 2021 इसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे विच इज ऑफ इंग्लिश। एज यू नो दैट सैनिक स्कूल में कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें कितने आते हैं 25 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने रहते हैं इंग्लिश के 50। एंड ये 50 मार्क्स फ्री के हैं। बहुत इजी रहता है सैनिक में इंग्लिश का पोर्शन। अगर थोड़ा सा मतलब स्मार्टली अगर आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ऑफ कोर्स वो बहुत इजीली आप मार्क्स को क्या है अटेन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पोर्शन जो हमारे पास रहता है बेटा, वो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। And for doing reading comprehension, what we need to do first, we need to read the questions first. So let's read the question. Question number 76 is, what is the meaning of the underlined word? अंडरलाइन वर्ड मतलब आपके सामने कुछ वर्ड्स है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेसिकली, प्रॉम्थियस हैड डिफाइड जीसस। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is not true about जीसस एंड प्रॉम्थियस? nobody is going to answer right now, please. कोई आंसर नहीं करेगा, just focus on the question. ठीक है, which of the following statement is not true about जीसस एंड प्रॉम्थियस? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Like most Greek gods saw human as a mean of their entertainment. Prometheus was chained to a rock as he was a god. Zeus was an unforgiving god who didn't like to be disobeyed. Or Hercules emerged as the savior of Prometheus. Next, why was Zeus angry and disappointed at human? क्यों वो उन पे गुस्सा थे, क्यों disappointed थे? They kept asking for fire. The human misused his lightning bolt. Or the humans were quarrelsome and didn't respect the gods. The humans were not intelligent enough to discover fire. चलो क्वेश्चन रीड कर लिए। यस, नाउ लेट्स रीड द पैसेज। ठीक है, क्वेश्चंस जब रीड कर लेते हैं, कीप दोस क्वेश्चन इन योर माइंड। ठीक है, उनको अपने माइंड में रखो, देन आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट human had trouble with Greek gods. Most God thought of human as toy, but God made friend with human. One of those was Prometheus. The first people created by God lived happily together. They thought the gods were wonderful, but the children were not as grateful or as content. The children argued among themselves, and sometimes we argue with the God. Sometimes they argue with the God. Jesus was very disappointed at mankind. He decided to punish mankind by depriving them of a very important tool, fire. Prometheus felt sorry for his human friends. Fire was important for many things, such as heat, cooking. Prometheus stole a lightning bolt from Zeus and gave it to mankind. That's why man discovered fire. Zeus was furious as Prometheus had defied Zeus. He ordered Prometheus to be chained to a rock as a punishment for stealing his lightning bolt and for going behind his back to help the humans. To make Prometheus even more miserable, Zeus sent Storm to beat angry wave against Prometheus. Helplessly chained to his rock, Zeus made the sun shine really brightly now and then to burn his skin. It was Hercules who finally released the helpless god, from his chains. Hercules ने उन्हें रिलीज किया। ओके, सबने रीड कर लिया? जिन्होंने नहीं किया, टेक अ मिनट और रीड इट। So, the first question is, what is the meaning of the underlined word? Prometheus had defied Zeus.
क्या है मीनिंग इसका? Prometheus has worshipped Zeus all his life, या फिर Prometheus has defamed Zeus? हाँ, मैं अभी कर रही हूँ, चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, गिव मी अ सेकेंड। चलो अब चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, यू कैन आंसर। ठीक है। Prometheus had worshipped Zeus all his life. Prometheus has defamed Zeus. Prometheus detested Zeus for his attitude. Prometheus had disregarded the authority of Zeus. क्या मतलब है इस लाइन का? The Prometheus had defied Zeus. It means कि उसने उन्हें धोखा दिया। He had disregarded the authority of Zeus, यानी कि D option is the right one. Next, which of the following statement is not true about Zeus and Prometheus? कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Which one is not true? देखो, most Greek gods saw human as means of their entertainment, ये ट्रू है ना? नेक्स्ट देखो, Prometheus was chained to rock as he was a god. Yeah, Zeus was an unforgiving god who didn't like to be disobeyed. Hercules emerged as a savior of Prometheus. तो Hercules emerged as a savior, ये हाँ उसने उसे छुड़ाया था, ठीक है। Zeus was an unforgiving god, ठीक है। But Prometheus was changed to rock as he was a god. इसलिए थोड़ी ना उसे रॉक के साथ बांधा गया था क्योंकि वो गॉड है, नहीं, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। 78. Why was Zeus angry and disappointed at human? Why was Zeus angry and disappointed at human? Very good, Bhanu. Good. Only Bhanu का आंसर है कि Zeus इसलिए गुस्सा और disappointed थे cause according to him humans were quarrelsome and didn't respect the god. C is the right answer. Next, fill in the blank with the most appropriate answer. ठीक है। There were no one else in the room dash Colin. होमोफोन से है बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन, देखो। There was no one in the room dash Colin. Colin के अलावा एक एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, दूसरा एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, है ना? तो ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता, और सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट इसके अलावा, तो कॉलिन के अलावा और कोई नहीं था रूम में, तो एक्सेप्ट ई, वो ये वाला बी ऑप्शन हम कर सकते हैं बिल्कुल। द न्यूज इज ऑल डैश द इंटरनेट। द न्यूज इज डैश द इंटरनेट, ऑल डैश द इंटरनेट। ऑल ऑन नहीं होता, ऑल थ्रो नहीं होता, ऑल नियर नहीं होता, ऑल ओवर पूरे पे, ऑल ओवर द इंटरनेट। सी। ठीक है। वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन फायर इन स्कूल। पर्टिकुलर हम किसी टाइम की किसी चीज की बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक, तो ए एन नहीं लगेगा, विल यूज द। वी स्टडीड अबाउट द रोमन एम्पायर इन स्कूल। नेक्स्ट हमारा है जंबल वर्ड। देखो दो क्वेश्चन आए, इनके 4 मार्क्स का काम है। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आया था विच इज ऑफ 2 मार्क्स। द सन यू ओ मस्ट स्टे आउट, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों इतने इजी आए हैं कि अगर सिंगल सब्जेक्ट भी अगर ढंग से फाइंड कर लोगे तो आंसर मिल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लो, ममता भारद्वाज। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो यू के साथ मोडाल लगा दे, यू मस्ट, यानी कि बी डी। सी इज द करेक्ट आंसर, यू मस्ट। देन क्या, स्टे आउट, वर्ब लगाएंगे किससे, ऑफ द सन। सी इज द राइट आंसर, सही आंसर बन गया हमारा। आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट। सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ओनली। तो आई, ए जो है नंबर वन पे रहेगा। पूरे ऑप्शंस में देखो तो ए नंबर वन पे सिर्फ एक में ही है। चलो उसके बाद वर्ब लगाते हैं। आई सैलरी नहीं होगी, आई वॉन्ट, ऑक्सिलरी है नहीं, आई वॉन्ट, ए ई, ए ई, सही बन रहा है। आई वॉन्ट क्या, माई सैलरी इमीडिएटली, पूरा सेंटेंस, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है, बता देती हूँ, बी। देन choose the word that mean the opposite of mortal। mortal का opposite find करना है। mortal जो खत्म हो सकता है, opposite क्या होगा, जल्दी। कार्तिक साहू क्वेश्चन नंबर कौन साथ में लिखेगा, अनया क्वेश्चन नंबर साथ में लिखो बेटा। बहुत अच्छी ट्रिक है कि क्वेश्चन नंबर ना लिखो, ऊपर या नीचे किसी का तो एक सही आंसर जाएगा, मैडम कहेगी कि हाँ ये ठीक है। मॉर्टल का, वेरी गुड, इमोर्टल। नॉट ए, अनमोर्टल नहीं होता अंश। देन नेक्स्ट हमारा है collective nouns है। A dash of thieves was caught by the police। A dash of thieves was caught by the police। Swamp back team batch। देखो या तो गैंग होता है या पैक, स्वॉर्म टीम बैच नहीं होता, बी। नेक्स्ट एडवर्ब फिल करना है। It has become his habit to dash do his homework and then copy it from others। It has become his habit। अगर काम नहीं करेगा तभी तो कॉपी करेगा, तो ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंट नहीं होगा। To never do his homework and then copy it from other, D is the right one। There were several dash at the conference। सेवरल वर्ड ही प्लूरल के लिए लगा है, तो वुमेन तो नहीं होगा, वुमेन्स या वुमेन्स नहीं होता, बच्चा क्या, वुमेन। ए इज द राइट वन, इतना इजी है, राइट। नेक्स्ट इडियम, टू बीट अराउंड द bushes means। To beat around the bushes means to turn violent against a stranger, or to avoid saying something because it is uncomfortable, to come to the main point of the conversation, or to start a fire in the forest। हाँ जी, बिल्कुल, टू बीट अराउंड बुशेस, टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, इधर उधर की बात कर, मेन बात को टाल। करेक्ट। 89 और 90 बताओ, उसके बाद डाउट्स लूंगी। माई फादर इज अ बुक वॉर्म।
He dash books to film and sports. अंश मैक्सिमम क्वेश्चन गलत जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सोच के आंसर करो प्लीज. My father is a bookworm. He dash books to film and sports. He is prefer नहीं होता. He prefer भी नहीं. क्यों? क्योंकि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट है ना उनकी. तो हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. और इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो उसके साथ क्या है? ई एस भी लगाएंगे. एस या ई एस, है ना? तो प्रेफर का बन गया प्रेफर्स. बस सी इज द राइट आंसर. चूज द मोस्ट appropriate option. Which of the following option is the meaning of the word exhausted? Exhausted का meaning कुछ है बेटा. Very hot, very polluted, very fresh or very tired? Which one? Very tired. D. Next, a confectioner is a person who dash. A confectioner is a person who dash. Who sells sweets. C. Very good, Vedansh. Correct answer से वेदांश का था. कार्तिक साहब यू आर लेट. अर्ली आंसर किया करो, देखो कौन सबसे पहले कर रहा है. अच्छा भानु. अच्छा भानु ने सही आंसर किया था. ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया. करेक्ट है. हैंड्स डाउन. ओके. भानु को साथ के साथ हो गया. मेरा कैसे नहीं नाम लिया मैडम ने? मैंने भी तो सही दिया था. ठीक है ठीक है. द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर. द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर्स. कैप्टन प्लेयर्स के साथ, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्टन ना. तो वॉज प्रेजेंट लगाएंगे, वॉज प्रेजेंटिंग तो नहीं लगाएंगे. हैव बीन प्रेजेंटिंग या हैज बीन प्रेजेंटिंग नहीं. द कैप्टन वॉज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर. नेक्स्ट 93. Leave your bags at the gate. Identify the type of sentence. Is it imperative, declarative, interrogative or exclamatory? कौन सा है? बहुत इजी है. कुछ जनों को बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे. वेरी गुड भानु. कार्तिक साहू आपके आंसर को कंसीडर नहीं कर पा रही हूँ. वेरी गुड खुशी. अनया, ये कहाँ से? इंट्रोगेटिव कैसे हो गया? लीव योर बैग्स एट द गेट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन. इट्स इम्पेरेटिव. इट्स एन ऑर्डर ना. राइट. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब प्लस फॉर्म. चलो. Near the sun or near the equator, the sun dash greater quantity of what quantities of water. Choose the correct form of the verb. Jaldi. Options है is evaporating, evaporates, has evaporated or evaporated. Evaporate, sorry. Very good, खुशी. Well done. आयुष कुमार मैं तो wrong है. देखो इवेपोरेट कर नहीं रहा है, वो करता है. ये हैबिट है, ये ऐसा एक्शन है जो हो रहा है, होता ही होता है. ठीक है. हमेशा होता है, ऑलवेज. सो द सन इवेपोरेट. तो ऐसे एक्शन को हम किसके में लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट में. तो आपके फर्स्ट फॉर्म सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो अगेन एस सी एस साथ में लगा देंगे भाई. ठीक है. करेक्ट. सो बी इज द राइट वन. चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अपार्टमेंट. Choose the correct spelling of apartment.
रॉन्ग। भानु भी रॉन्ग, वेदांश का करेक्ट है। हम्म। कार्तिक दो दो तीन तीन मत भेजो, पहले ए को रॉन्ग कहा तो बोलते सी है, सी को रॉन्ग बोलती तो आप डी भेज देते, ये कोई बात नहीं होती। एक ही बार भेजो। तो देखो डबल पी अपार्टमेंट नहीं होता, डबल टी भी नहीं होता, तो बचा सी और डी में से। तो अपार्टमेंट या अपार्टमेंट, अपार्टमेंट सी इज द राइट वन। टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, सो इजी क्वेश्चन। टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, करेक्ट एडजेक्टिव बताना है, दैट्स इट, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट है ना। द सुपरलेटिव डिग्री है, करेक्ट। तो उसके साथ क्या लगाते हैं, द किसके डेफिनेट आर्टिकल, द यूज विद सुपरलेटिव डिग्री, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, राइट। नेक्स्ट, पोएट्स आर नॉन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, सो फ्लाई का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो फ्लाई हमारा जस्ट अंडरलाइंड है, फ्लाई का मुझे नियरेस्ट मीनिंग बताइए। सो और श्योर। एस ओ ए आर, सो सी इज द राइट वन, कि उसका मतलब होता है टू फ्लाई, है ना, उड़ते रहना, प्रोग्रेस करना, बढ़ना। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, देयर आर सम डिजीज दैट आर इनहेरिटेड, सो हमसे पूछा आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, डिजीज कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कोलेक्ट और कॉमन। कॉमन आंसर है बड़ा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। अच्छा, डिजीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और क्या क्या, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है ये। इट्स कॉमन। नेक्स्ट, after school, you and Dash must discuss a few things. Choose the correct pronoun. Him, me, I, we. You and him नहीं होता बेटा, आपको याद हो मैंने प्रोनाउन में आपको 3-2-1 का फॉर्मूला बताया था, कि अगर हमें प्रोनाउन फिल करने आ जाए तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन लगाएंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब थर्ड है नहीं तो सेकंड के बाद कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट, है ना। सेम अगर एक्शन हो रहा हो तो हमने बात की थी। तो यू एंड आई, नॉट यू एंड वी, you and I. Next, 100. It's quite warm. Dash. Use the question tag. It's quite warm. Dash. हिंट दे देती हूँ, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो देखो इज हमारा ऑक्सिलरी है ना, तो इसको करेंगे, तो अगर इसके साथ नॉट लगाना है तो हम करेंगे इजेंट बना देंगे, इट प्रोनाउन ऑलरेडी है तो इजेंट इट, सी नहीं है हमारे पास, राइट। His answer key which you can follow. Hopefully this is clear to you. If you have any doubt then you can ask. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।